بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت آئین سے بغاوت کی مرتکب ہو رہی ہے۔ انورٹڈ کاماز میں یہ لیجیے گا، یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شیخ رشید صاحب نہیں پائی اپنے، وہ جو وزیر داخلہ لگے ہوئے ہیں آج کل، وہ 15 وزارت والے، وہ گیٹ نمبر 4 والے، وہ شیخ رشید صاحب جو کہ عمران خان کی انتہائی ایماندار حکومت کے ترجمان ہیں، جو قومی سلامتی کے اداروں کے بھی آپ ہی ترجمان بن جاندے، کوئی انہوں نے نہیں کہندا ترجمانی کرو، وہ جا کے ترجمانی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آج بلاول بھٹو زرداری کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ دودھ کے دانت جس کے نہیں ٹوٹے، یہ جناب بتا رہا ہے کہ OIC جو ہے اس کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ لہجہ ان کا بڑا عجیب و غریب ہے، ویسے وہ بندہ بھی عجیب و غریب ہی ہے، لہجے تو ان کی کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے اس میں یہ کہا کہ OIC کا اجلاس بہت اہم ہے۔ سر OIC کا اجلاس اہم ہے، OIC کے اجلاس سے کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کا آئین سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر آپ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ باغی ہیں، آپ بغاوت کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں جس کی سزا پھر آرٹیکل 6 سے لکھی پائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گی، یہ ساری باتیں کون کہہ رہا ہے؟ یہ ساری باتیں اپوزیشن کہہ رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں اس کا سیدھا سیدھا یہ مطلب تھا کہ جناب اسی نہیں مانتے تہاڈی گل، ٹھیک ہے، تے تسی جاؤ جتھے مرضی، مطلب وہ تھا مطلب ایسی کہ اسی تہاڈی گل نہیں ماننی، یعنی آئین کی بات نہیں ماننی۔ اب شیخ رشید صاحب نے ایک بے ایمانی کا نیا طریقہ ایجاد کیا۔ یار ایسے کمال ذہین آدمی، میں آپ سے عرض کروں، اتنا اس نے بے ایمانی کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ انہوں نے کہا جناب شیخ رشید صاحب نے کہ جناب جس وقت آپ کو پیسے دے رہے ہیں وہ یہ سوئس اکاؤنٹ کے پیسے ہیں، یہ ایون فیلڈ کے پیسے ہیں، یہ پتنی چوروں ڈکوؤں کے پیسے ہیں، وہ جو ایک لمبی گردان عمران خان نے ایک باقاعدہ سکھائی بھی ہے سب کو، اور یہ شیخ رشید صاحب بھی ان کے ساتھ ساتھی ہیں۔ وہ اگر فرض کرے استاد ہیں تو یہ منیٹر ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ بات بار بار جو ہے نا وہ کر کر کے لوگوں کے ذہن میں اپنی طرف سے بٹھایا ہوا ہے۔ یوتھیا جو ہیں وہ قوم باقاعدہ طور پہ ان سے متاثر ہے، عقل مند آدمی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، لیکن وہ شیخ صاحب نے ساری وہ باتیں کرنے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ان کا چوروں کا مال کھاؤ، نالاکھ ماری، ٹھیک ہے، اور واپس آ جاؤ۔ یہ کلپ ذرا دیکھیے، بڑا زبردست کلپ ہے، یعنی آپ کو ایسے لگے گا جیسے باقاعدہ کوئی سٹیج ڈرامے کے اوپر ایکٹنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ وزیر داخلہ ہے پاکستان کا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ذرا کلپ دیکھیں آپ۔ یہ سرے محل کے پیسے اور سوئس اکاؤنٹس بینک کے پیسے، اور اب میں کس کا نام لوں؟ میرے پاس تو رمضان شوگر مل ہے، حدیبیہ شوگر مل ہے، ایون فیلڈ ہے، مقصود چپڑاسی ہے، مسرور چپڑا۔ یہ چوروں کے مال سے اگر MNA مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ، مال ان کا کھاؤ، کوئی رج نہیں ہے، کوئی رج نہیں ہے، کوئی رج نہیں ہے۔ آپ نے کلپ دیکھ لیا، اس میں وہ جس طریقے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں، کدی ہاتھ انج کر رہے ہیں، کدی انج کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ شیخ صاحب جو ہیں ان میں تو اداکاری کے بہت سارے جوہر موجود ہیں، یہ تو میرا مطلب ہے غلط پاسے آ گئے۔ یہ چودھری ظہور لائی وغیرہ نے ان کو غلط سائٹ پہ تعلیم دلوا دی۔ انہوں نے سر کسے آرٹ اوٹ دے وہ بھیجیا ہوں، یہ منور ظریف کا ریکارڈ توڑیا ہوں بھائی نے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی ذرا ایکٹنگ دیکھیں کس کلاس کی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے۔ بہرحال آج ہوا یہ ہے واقعہ کہ جناب شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے حسب سابق عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہونے کے دعوے کیے ہیں، اور ادھر سے مجھے پھر وہ واقعات یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا کریں، اب ماضی میں چلا جاتا ہے انسان، سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ پہلے کیا تھا، یہ اسی طرح پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ایسے ہی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ یہ میرا ہی سوال تھا، یہاں پر لاہور کے اندر ایک تقریب تھی، یہ ایوان کارکنان پاکستان جو ہے یہاں پر تقریب تھی مال روڈ کے اوپر، اور میں نے سوال کیا تھا شیخ رشید صاحب سے کہ شیخ صاحب وردی کدو لانی جے اپنا پرویز مشرف دے؟ انہوں نے کہا وردی ہو دی ہے یار، تینوں کی لگے، وہ لائی رکھے پائی رکھے، میں مشرف دے نال کھلوتا، اس طرح کرے بات کرتے تھے۔ پھر وہ اس کے بعد پھر ایک بیان آیا تھا پرویز مشرف صاحب کا کہ وردی میری جو ہے نا وہ چمڑی ہے، تو وہ اپنی چمڑی اتار دیں، اس طرح کر کی باتیں کرتے تھے شیخ صاحب، اور بڑا چٹان کی طرح
उदों तो इन्हां दा खैर मतलब ज़ाहिर है अज तो 20 साल पुरानी गल है, तो उस वक्त अगर अब शेख साहब 70 साल के तब 50 साल के थे, तो उसने ज़रा ताकत भी ज़्यादा थी और मतलब है कि हल्क की जान भी बहुत सी, तो ज़्यादा जोश के साथ ये बातें किया करते थे। फिर वक्त ने अपना धारा बदला और परवेज़ मुशर्रफ साहब को यहाँ से जाना पड़ा। यही शेख रशीद साहब जो है ना, जिस तरीके के साथ फिर वो मतलब परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, कभी लाल मस्जिद के वाक़यात के कि जी लाल मस्जिद का वाक़या करके बड़ा जुल्म किया, मैं मना भी कीता सी, ठीक है, कभी और बातें करते थे, तो फिर वो होली होली परवेज़ मुशर्रफ से फ़ारग हो गए। अब वो इमरान खान के साथ है। दरमियान में कोशिश की इन्होंने, जरदारी साहब की तरफ आने की, नवाज शरीफ साहब की तरफ आने की, पर उन्होंने दोनों लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि वो जानते हैं वो इन्हें तो वड्डे कारीगर ने भाएं दोवें, लिहाजा उनको पता इस बात का कि नहीं सानू इस अदाकार की लोड़ नहीं है, एक्स्ट्रा जेडे ना अदाकार इन्हों की लोड़ नहीं है, असी आप बड़े वड्डे फनकार हैं। उन्होंने इनको नहीं लिया। अब ये इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए बातें कर रहे हैं। मगर इस दौरान मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक शख्स हैं जिनका नाम है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यंग आदमी हैं और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा रिजनेबल आदमी है। उन्होंने एक जो बात की है कल, वो उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बाज ना आई बहू जी, तो फिर असी उन्होंने वज़ीरां नूं भी सामने ले आवांगे जिहड़े साडे नाल मुके पे ने, फिर कित्थे जाओगे। तो हुकूमत के पास अब है कुछ नहीं, सिर्फ हलक के ज़ोर पे हुकूमत जो है ना वो अपना टाइम पूरा कर रही है, और टाइम पूरा होया पे वैसे मेरे हिसाब में। जिस नहज पे चीज़ें आ गई हैं, इमरान खान साहब जितना मर्जी तरला पालन, इमरान खान साहब जितना मर्जी अगे जाके मतलब है कि गिड़गिड़ा लें, पुरानी दोस्तियां ताल्लुक़ के वास्ते दे दें, लेकिन उधरों पाइन नो रिस्पॉन्स द बोर्ड है अभी तक है। अगर वो नो रिस्पॉन्स नहीं भी रहता, फ़र्ज़ करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं जनाब ठीक है कोई गल नहीं यार, अपना बाल है हूँ, इस तरह मतलब भुखा प्यासा तो ना मारो, चलो कोई गल नहीं, छावें बहा दो, कोई रोटी रोटी खुआओ, कोई चाह पानी पूछो, इस तरह करके भी फ़र्ज़ कर लेते हैं। अगर वो करते हैं ना, तो हालात जो है ना वो इस तरह यू टर्न नहीं ले सकेंगे। फिर भी जहाँ तक चीज़ें चली गई हैं वहाँ से अब वापसी तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। अपोजिशन भी जिस जगह पे चली गई है कि बिलावल साहब ने कहा जी कि OIC का इजलास जो है वो मतलब फिर करा के दिखाना, वो बिलावल साहब ने वैसे थोड़ा सा मतलब एक गुस्से में कह दिया, लेकिन जो भी आईनी आदमी होगा, और इसकी बाकायदा तईद भी की, उस वक्त आप खड़े थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी, मौलाना साहब ने भी की, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है कि OIC का इजलास जो है वो बड़ा अहम है और आइन जो है उसको अहम नहीं समझा जाता। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। तो बिलावल साहब ने तो आइन की पासदारी की बात की थी, मगर उस पर उनको मतलब बहुता यकीन नहीं आया। आज हुकूमत ने क्या किया देखें, इसमें OIC का कोई मसला नहीं था। 8 तारीख को ये रिक्वेजिशन जमा करवाई गई थी। 8 तारीख के बाद से 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना लाजमी है, ये बाकायदा तौर पर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। अब हुकूमत ने जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि एक उस्तादी लगाई है और आइन से उन्होंने की है बगावत, वो मैंने क्यों कहा है और वो अपोजिशन इसकी नरेशन क्यों ऐसे कर रही है बगावत की। बगावत को इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, ज़ाहिर है बगावत अगर किसी ने की है तो या वो अदालत तय करेगी या वो तारीख तय करेगी, ठीक है, यानी हिस्ट्री में ये चीज़ तय होगी कि केड़ा केड़ा बागी होया है। तो वो अब उन्होंने जो आज नोटिफिकेशन किया है, नोटिफिकेशन आपके सामने चल रहा है, ख़बर मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। उन्होंने कहा जी 25 मार्च जुम्मा बरोज़ जुम्मा सुबह 11 बजे इजलास जो है ना वो बुला लिया गया है। किसका बुला लिया गया जी? अब ये जो कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया। और क्यों बुला लिया गया कि जी अपोजिशन ने एक तरीके अदम एतमाद जो है वो जमा कराई हुई है। आइन के तहत 14 दिन में बुलाना था। अब स्पीकर की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ उसमें कहा गया जनाब असी सारियां थावां लभियां, सानू कोई थां इस्लामाबाद अवेलेबल नहीं थी। कौमी असम्बली का जो हाल है वो हम ऑलरेडी 21 जनवरी 2022 को एक करारदाद के ज़रिए OIC के लिए ऑलरेडी मुख्तस कर चुके हैं। वो जगह हमें कोई और जगह नहीं मिल रही इजलास बुलाने के लिए, लिहाजा हमने फिर ये तय किया है कि जनाब जो है ना इजलास वो बुलाया जाएगा और इजलास बुलाया जाएगा जनाब 25 तारीख को, और ये जुम्मे के रोज़ सुबह 11 बजे इजलास होगा। इसमें उन्होंने आइन का एक आर्टिकल है जो 54 और उसकी सब सेक्शन 3, इसी तरह आर्टिकल 254 का भी उन्होंने हवाला दिया है कि जनाब ये हमें ये कहते हैं कि ये कर सकते हैं अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हों। अच्छा, अब ये दोनों आर्टिकल मिला के पढ़े तो वाकई ऐसा है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस तो पाइन हुकूमत ने बनाए ने ना। हालांकि 8 तारीख को वो जमा
ਜਮਾ हुआ है, ਤੁਸੀਂ 10 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, 11 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, 12 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, 13 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, मतलब 14 दिन पड़े हुए थे ना। हुकूमत ने जान के डिले किया और डिले करते करते वो OIC के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश की और ये फिर बहाना पा लिया पाइन ने कि जनाब और कोई जगह अवेलेबल नहीं। मैं हैरान हूँ, ऐसे कमाल बात करते हैं कि जगह अवेलेबल नहीं और इन्ना वड्डा सरीना होटल बाबू जी, ठीक है, इन्ना वड्डा मैरिट होटल, मतलब इस्लामाबाद में तो होटल ही होटल हैं, इस्लामाबाद में तो जगह ही जगह है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब असम्बली में जब ये कोरोना के दिन थे तो वहाँ पर कोरोना वायरस ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो पंजाब असम्बली का इजलास होना था, बजट सेशन बकायदा तौर पे यार, ये फ्लैटिस होटल में हुआ और वहाँ पर इजलास हो गया। कहने का मतलब ये है कि बहू जी जे नीयत होवे ना तो सारे काम हो जाते। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ये कर रही है कि किसी भी तरीके से जो मर्जी करना पड़े यार, झूठ ही होवे कि सानू जड़ा ना तरीके अदम एतमाद का सामना करना पवे, लेकिन अब पाए ना हुण यह गल इंज होनी नहीं है। अभी भी वो जो कर रहे हैं वो ये है कि जनाब 14 दिन के अंदर इजलास कॉल करना ज़रूरी था, हमने 20 तारीख को कॉल कर लिया, ठीक है, तो मतलब इसकी जो है कोई भी मतलब उसके बाद कभी भी हम कर सकते हैं उसका, यानी दोबारा इजलास का इनेकाद बाद में हो सकता है। यानी अब वो दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि बुलाना ज़रूरी था, बुला लिया, हमने कॉल दे दी है, इजलास होगा 25 को, आइन के अंदर रहते हुए हमने ये कॉल दे दी है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है ना, ये बच्चियाँ नहीं गल्लां ने, ये मतलब ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लग सकता है और इसमें ज़ाहिर है कि असद कैसर साहब की गर्दन फंसनी है। लेकिन चूँकि कुछ हवाले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कि जनाब पार्लियामेंट के मामलात में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकती, लेकिन अगर मामला आइन की खिलाफ वर्जी का होगा तो फिर असद कैसर साहब की गर्दन जी ना वो फिट हो जाएगी। और ये याद रखना चाहिए कि परवेज़ मुशर्रफ बच इसलिए गए थे आर्टिकल 6 से क्योंकि भाई ना वो साबिक आर्मी चीफ सी, ठीक है, वो कमांडो फौजी थे, वो उनके पीछे उनका अदारा खड़ा था और फ़ौज से ज़्यादा पावरफुल पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं होती। तो असद कैसर साहब आप तो माजरत के साथ गेट नंबर 4 से भी नहीं आए हुए, ठीक है, वो गेट नंबर 4 नाल को गली होएगी, गली ਦੀ को खोखा होएगा, खोखे ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ छोटा ਜਾਂ ਹੋਰ कोई टी स्टाल होएगा, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੋਂ कितों आए लगते हो, तो मेहरबानी करें इस तरह की हरकतें ना करें। हुकूमत की जानिब से ये करने के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल अपोजिशन का आ रहा है और मरियम औरंगज़ेब हों या अपना JUIF के जो तर्जुमान हैं वो हों या पीपल्स पार्टी के लोग हों, बहुत ज़्यादा सीख पाएँ, लेकिन फ़िलहाल वो कर कुछ नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि OIC हो रही है और OIC में ज़ाहिर है पाकिस्तान के दावत के ऊपर दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं और बंदा हूँ उत्थे मतलब ढिड तो कपड़ा चुक के तो नहीं खलो सकता ना। तो ये एक मामला इस वक्त है, मगर जो हुकूमत ने ये हरकत की है मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 25 तारीख को ही चले फिर वड्डा मैदान लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। और मुझे इस बात का जो एक गुमान है, बल्कि थोड़ी बहुत इतला भी है कि 25 तारीख को ही हो सकता है कि जो तादी तुदी है ना ये सारे कहन बाबू जी तुसी अपने घर खुश, असी अपने घर खुश, असी तुहाडे नाल नहीं जे रहना, ये हो सकता है वो कह दे। और उसके बाद इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म शायद 27 का जलसा अटेंड ना करें, वो हो सकता है वो फिर अपोजिशन लीडर के तौर पे जाए, पता नहीं वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तादाद से, जिस मिकदार से, जिस स्पीड के नाल इमरान खान के थल्ले MNA निकल रहे ना, मुझे लगता है कि इमरान खान तो पार्लिमानी लीडर ही नहीं रहना PTI का, क्योंकि अगर 51% तादाद जो है पार्लिमानी पार्टी की वो किसी और को अपना लीडर बना लेना तो इमरान खान साहब टाएँ फिश ने कार ने। ये भी एक कानून मौजूद है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आइन की जो कौमें अपने लिखे हुए आइन की, अपने दस्तखतशुदा कानून की खुद पासदारी नहीं करती, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर पाती। अगर हमें इस मुल्क को, इस कौम को आगे लेके जाना है तो हमें आइन की पासदारी करना होगी। अगर हम नहीं करेंगे तो भाई फिर कभी इमरान खान निकलेगा, तो कभी नवाज शरीफ निकलेगा, तो कभी भाई मरियम बाजी आ जाएगी, ठीक है, फिर इस तरह के लोग ही चलने रहेंगे। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।